We are again with another session in Atal Tinkerpreneur Summer Bootcamp. So today we are running for the third session of the 8 weeks. So today we have with us Mr. Vinod Tiwari. He's an RMSC from Gujarat, and he has been taken a few sessions earlier also on the Atal Tinkerpreneur Summer Bootcamp. And again, with us, he is there to host another session on the social media marketing. So in this online business week, we are already have covered the topics which were related to the online business, and we are now going forward for the social media marketing. So we very well aware of the fact that in today's world, what's the important role the social media plays in promoting your venture and promoting your ideas. So how is going to play a very vital role in the in sustainability of the business. So this here we have because and since it is an online promotion tool, that's why we are very much delighted to know that how the social media can eventually leverage the ventures which are basically launched on the online mode. So today with us Vinod Tiwari sir, so he will be presenting an insightful discussion on the topics, and he himself is very much present on the social media and knows every bits and details of the social media marketing. So thank you, Vinod sir, with joining with us on this Atal Tinkerpreneur Summer Bootcamp, and we are delighted to have you with us. So I will not take further for much time, and I will, without any further delay, I'll ask you to go for the session. Thank you, sir. Thank you, Vinod sir. Thank you very much, Madhuri, for a great introduction and inviting me over here. And I'm really happy to be, making another session for you guys. So, सबसे पहले तो I just want to check that how are you all guys? Okay, I hope that you all are doing good. आपको सबको नमस्ते और सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और मेरे सारे मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक. So let's start it. It's very interesting session what we are going to do today, and I'm going to promise you कि आपको बहुत कुछ नई नई चीजें मिलने वाली हैं. हमारा जो सेशन है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग तो है ही लेकिन उसमें भी सोशल मीडिया. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो व्हाट आई वुड डू दैट आई वुड बी गोइंग लिटिल फास्टर, and here I want to start sharing my slides, and at the last whatever questions you would be having, we can take all those questions as well. And I would request Madhuri to please collect all the questions and take it at the last stage. So here is something which is very interesting called social media marketing. ओके सो बच्चा लोग, हम लोग सरल भाषा में बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ में आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भाषा, मेरी स्पीड आपको मैच करेगी. और फिर भी कोई चीज मिस कर जाती है तो कोई बात नहीं, आप उसे लास्ट में रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हैं कभी भी. तो हमारा ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग. अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम समझे कि मार्केटिंग होती क्या है. मार्केटिंग, जैसा मैंने पहले आपको लास्ट टाइम बताया था कि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केटिंग का. आपका प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं है, आप प्रोडक्ट तो खुद बना चुके हो और बना रहे हो और बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट बना करके मार्केट कैसे करना. अच्छा, मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग चीजें होती है. तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि मैं अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि आपको वो अच्छा लगे, आप उसके प्रति आकर्षित हो और आप उससे इंगेज हो. दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग इन अ सिंपल वे. तो मार्केटिंग की आज हमारे पास में क्या ऑप्शंस है. मैंने एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है, बहुत ही जबरदस्त, और उसको मैंने घर के अंदर में सजा करके और कमरे में रख दिया है. तो उससे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं. मुझे मार्केटिंग उसकी करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एडवर्टीजमेंट. ओके, सो हाउ वी कैन मार्केट और हाउ वी कैन एडवर्टाइज अवर प्रोडक्ट, व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव टुडे. आज हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. यदि इंटरेक्टिव क्राउड होता तो मैं आपसे पूछता, लेकिन मैं चलो आपकी तरफ से जवाब देता हूं. आपको पता होगा कि सबसे पहला एक बड़ा कॉमन सा मार्केटिंग का हम लोग देखते हैं ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड बिलबोर्ड प्रमोशन. ओके, आपने देखा होगा सड़क के किनारे बड़ा लंबा चौड़ा बोर्ड लगा रहता है और उसके अंदर में बहुत बढ़िया बढ़िया एडवर्टीजमेंट्स होते हैं. ठीक है ना, बहुत अच्छा है, ये अच्छा ऑप्शन है. एनीबडी कैन डू इट? नो, एनीबडी कैन नॉट डू इट. ओनली बिग कॉर्पोरेशंस जिनके पास में लाखों रुपए हैं वो इसे यूज कर सकते हैं. अब इसके फायदे
क्या है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन नुकसान की बात पहले करते हैं। इसमें नुकसान पहला ये है कि आपको सबसे ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। दूसरा बड़ा नुकसान जो मुझे दिखता है, जो आपको भी पता होगा, यदि ये साइन बोर्ड मुंबई के किसी एक एरिया में लगा है तो ये वहीं के लोग देख पाएंगे, दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं है। दिल्ली में यदि ये ग्रेटर कैलाश में लगा हुआ है तो मुंबई के लोग नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब है ये एक उस शहर और उस सिटी और उस एरिया के अंदर में लिमिटेड होता है, क्योंकि बिलबोर्ड तो फिक्स होता है। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। हाउएवर ये उस एरिया के लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काम में आता है, या फिर कारपोरेट एडवर्टीजमेंट के लिए काम में आता है, जो कि नेशनल ब्रांड होता है। बट अगेन बिलबोर्ड जब भी आता है तो वो बिलबोर्ड एक सिटी में नहीं आता है, बहुत सारी सिटियों में आता है, और उसके लिए पैसा इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है। दूसरा आपने देखा होगा, बड़ा सिंपल सा जरिया है, दैट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। बहुत सारे न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर सिर्फ ग्रेटर कैलाश में नहीं आता है, मुंबई के एक जगह पर नहीं आता, पूरी दिल्ली में सर्कुलेट होता है, या पूरे नॉर्थ इंडिया में जाता है, या पूरे इंडिया में भी जाते हैं कुछ न्यूज़पेपर। तो उस एडिशन में आप अपना न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन डाल सकते हैं, तो ये उतनी बड़ी क्राउड को कवर करता है, लेकिन पैसा बहुत लगता है। दूसरा ऑप्शन है मैगजीन्स। तो मैगजीन्स का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा पैसा कम लगता है, थोड़ी सी हमको इसके बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अगेन मैगजीन भी कुछ पर्टिकुलर लोग ही आजकल चुनते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल धीरे धीरे लोग ऑफलाइन टू ऑनलाइन जा रहे हैं, तो आजकल मैगजीन्स ना पढ़ के वो डायरेक्टली ई सब्सक्रिप्शन लेने लगे हैं। तो आजकल जो मैगजीन्स का चलन था वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन जो सबसे बढ़िया, जो हम सबको पता है, दैट इज कॉल्ड टेलीविजन। एवरीवेयर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं आज की डेट के अंदर में। तो लेकिन टेलीविजन के अंदर में एक न केवल सिटी, न केवल शहर, बल्कि पूरा इंडिया कवर किया जा सकता है, और वर्ल्ड वाइड भी कवर किया जा सकता है। कई सारे टीवी के एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड भी आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो टीवी का एडवर्टीजमेंट आप शहर और सिटीज में आ रहा था वो वर्ल्ड वाइड कवर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन क्या है? पैसा बहुत लगता है। मेरे दोस्त, मेरे जो बच्चों ने बनाए हुए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, उसको मार्केट करने के लिए क्या मेरे जो सहपाठी है, क्या वो सोच सकते हैं टीवी का? नहीं सोच सकते। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये ऑप्शन भी है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। एक और ऑप्शन सुना होगा आपने, रेडियो। यस, रेडियो का जरूर सुना होगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे एफएम आते हैं, एफएम के अंदर में भी आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। एफएम की भी पहुंच बहुत ज्यादा होती है, उसकी रीच बहुत बड़ी होती है, लेकिन पैसा बहुत लगता है। एक और जबरदस्त जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉडकास्ट एक्सप्लोजन। पॉडकास्ट की रीच भी बहुत ज्यादा होती है। पॉडकास्ट की रीच एक सिटी, एक कंट्री में नहीं होती, बल्कि वर्ल्ड वाइड होती है। और अच्छी बात यह है कि इसमें पैसा बहुत कम लगता है, बहुत ही कम लगता है। तो एक ये भी एक ऑप्शन है। तो ये इतने सारे ऑप्शंस थे। अब मैंने यहाँ पर, आपने ध्यान दिया होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन की बात नहीं करी, और वो है सोशल मीडिया। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि सोशल मीडिया है क्या, लेकिन बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया चीजें मैं बताता चलूंगा। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हमने रिसेंटली एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट लॉन्च किया था, लास्ट वीक में ही लॉन्च किया है, और वो पॉडकास्ट का नाम है रीजनल मेंटर इंटरव्यू बाय विनोद तिवारी। तो इसमें हमारे जितने 90 मेंटर्स हैं, रीजनल मेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, उन सभी लोगों का हम इंटरव्यू आपके लिए देंगे। और ये पहला दुनिया का ऐसा पॉडकास्ट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारे जो पहले गेस्ट थे मिस्टर अखिल, देखते हैं वो क्या कहते हैं। Hi, my name is Atal Damodaran. I am Regional Mentor of Change for Uttarakhand, and I am also faculty in School of Business, University of Petroleum Energy Studies. This podcast is actually to connect regional mentors to all students across schools under Atal Tinkering Lab initiative. And this podcast will actually give you the views exactly how the future world will look like, and how the innovation and ecosystem, the new technological ecosystem, is what the students have to be prepared for the future. And I think the views of the mentors, regional mentors, will be a really important viewpoint for all the students across India. And I think this is a great initiative, and this can really connect all the schools and students to the regional mentor, and especially it will be beneficial for the 18 initiative by NITI Aayog. Thank you. Very good. Thank you, Akhil. So Akhil was one of the first guest from Uttarakhand. He is a regional mentor of change. तो इस पॉडकास्ट के अंदर में भी हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है, स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू गिव देयर एडवर्टाइजमेंट इन दैट. दिस इज गोइंग वेरी फैंटास्टिक. अगेन नॉट वेरी कॉस्टली, वेरी 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 चीप. नाउ हम बात करते हैं अपने रियल चीज की, जिसका नाम है सोशल मीडिया. तो हम समझना चाहते हैं कि पहले सोशल मीडिया जरूरी क्यों है जी.
आपके पास में इतने सारे ऑप्शन हैं, तो आप सोशल मीडिया का सहारा बिजनेस के लिए क्यों लें? तो सोशल मीडिया के अंदर में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में या तो आप यूज हो सकते हो या आप उसका यूज ले सकते हो। तो यदि मैं उसमें कुछ बेनिफिट नहीं ले रहा तो दरअसल मैं उनके लिए एक प्रोडक्ट हूं और वो मेरा यूज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसको मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करूं, और मैं इसे तीन चीजों के लिए यूज कर सकता हूं: ट्रैफिक, ब्रांडिंग और अवेयरनेस के लिए। आई कैन मेक रियली गुड बिग ट्रैफिक, ब्रांडिंग एंड अवेयर। अब क्यों, रीजन क्या है? सबसे पहली चीज तो सबसे ज्यादा आंखें, सबसे ज्यादा आईबॉल, सबसे ज्यादा लोग कहां चिपके हुए हैं? एग्जैक्टली मोबाइल्स पे या लैपटॉप्स पे। यानी स्क्रीन टाइम आजकल लोगों का बढ़ता ही जा रहा है, और डिजिटल इंडिया के बाद ज्यादा बढ़ गया, लेकिन कोरोना के बाद में और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मैं यदि आज का डाटा बताऊं तो दुनिया की आधी आबादी, करीब 7 बिलियन के आसपास में लोग हैं। 3.8 billion people are on the social media. So you can think about it कि how many people are every time looking at the social media. Social media का मतलब तो आप जानते हैं, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, such kind of platforms जो कि सोशली लोगों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो ये सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा लोग हैं, और इसके लिए ही हम आज इसमें बात कर रहे हैं कि हम इसमें से कैसे फायदा ले सकते हैं। एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपनी कोई दुकान खोलते हो, शॉप खोलते हैं, फिजिकल शॉप खोलते हैं छोटी सी, या कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो आपका लिमिटेड टाइम के लिए काम करता है। लेकिन यदि मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके पास में एक शॉप है जो कि 24 घंटे खुली रहती है, कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि जब यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है, और वहां रात होती है तो यहाँ दिन होता है। यानी 24 घंटे वो इंटरनेट के अंदर में शॉप ओपन रहती है, और कोई स्टाफ का चक्कर नहीं, कोई लाइट का बिल भरने का चक्कर नहीं, कोई आपके ओवरहेड्स नहीं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं, छोटी सी साइट बना सकते हैं जो कि फ्री में बन जाती है, पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं 1 पेज का, जैसा हम लोगों ने टिंकर बूट कैंप में समझा भी है। तो उसके थ्रू आप एक सिंपल सी वेबसाइट बना करके वो वेबसाइट को आप 24 घंटे के लिए पूरी वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। मेरे पास कई लोगों के क्वेश्चन आए और लोगों ने मुझे पूछा कि ये सरल कैसे बना, मतलब सस्ता कैसे हो सकता है या फ्री कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा ये दरअसल फ्री ही है इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। दिस इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। जहां अपन लाखों या करोड़ों की बात कर रहे थे, वहां पर ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब मैं बात कर रहा हूं ना कि फेसबुक की वेबसाइट बनाने की, फेसबुक का प्रोफाइल बनाने की, या आपके लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाने की। मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर में एडवर्टीजमेंट की, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की। तो उसको हम समझना चाहते हैं कि क्या वो कितना सस्ता पड़ता है। तो सबसे पहली चीज तो, जहां पर मैं बिलबोर्ड या टीवी या न्यूज़पेपर या मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देता हूं, तो मुझे ये सारे लोगों को देना पड़ता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना? चाहे वो मेरा प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है या नहीं है, उन लोगों के सामने भी मुझे प्रस्तुत करना पड़ता है, और मुझे उसका पैसा भी पे करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने कुछ लेडीज का कोई मेकअप का आइटम बनाया, या लिपस्टिक बनाई, समझ लीजिए लिपस्टिक बनाई। अब वो क्या लिपस्टिक जेंट्स के लिए जरूरी है? जेंट्स को देखना चाहिए, जेंट्स के काम आने वाली है। आप कहोगे नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो सर? फिर भी टीवी के थ्रू या मैगजीन के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू वो जनरल एडवर्टीजमेंट होता है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है सोशल मीडिया में। क्यों? क्योंकि वहां पर आप सेक्स के अनुसार दे सकते हैं, यानी फीमेल को ही दिखा सकते हो, मेल को इसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको दिखाओगे ही नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने एडवर्टीजमेंट को ट्यून कर सकते हैं, सिर्फ मेल देखेंगे या सिर्फ फीमेल। सेकंड चीज, उनका इंटरेस्ट क्या है। जहां पर आप फेसबुक में जाते हो तो आप अपनी हॉबीज और आप अपने इंटरेस्ट भरते हो, देखा होगा आपने, तो वो आपसे बड़ी जबरदस्त पूछते हो और आप जल्दी जल्दी लिख देते हो। दरअसल वो लिखने के बाद में मीडिया के थ्रू टारगेट करते हैं उन लोगों को जिनके इंटरेस्ट और हॉबीज में वो चीज आती है। अब कोई लड़की लिखती है कि मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है, मुझे कॉस्मेटिक्स के आइटम्स बहुत पसंद है, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं किनको चुनूंगा एडवर्टीजमेंट में? चुनूंगा उन्हीं लोगों को जिनको ये पसंद है। दूसरा, डेमोग्राफिक। अब समझ लीजिए कि मेरा प्रोडक्ट अभी जो मैंने बनाया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और अभी 8th क्लास में पढ़ती हूँ, और मैंने एक छोटी सी चीज बनाई है, लेकिन मैं उसे वर्ल्ड वाइड ट्रैवल तो नहीं, वर्ल्ड वाइड तो मार्केट नहीं कर सकती, और वर्ल्ड वाइड उसको डिलीवर भी नहीं कर सकती। मैं शायद बॉम्बे भी नहीं डिलीवर कर सकती, मुझे सिर्फ दिल्ली के ही लोगों को बेचना है। तो दिल्ली के लोगों को हम डेमोग्राफिकली टारगेट कर सकते हैं, और दिल्ली के अंदर में भी हम पर्टिकुलर जगह को कर सकते हैं। यानी वर्ल्ड वाइड
इंडिया वाइड, सिटी वाइज भी हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है कि मैं अपना एडवर्टीजमेंट 50 लाख लोगों की जगह सिर्फ 1 लाख लोगों को दिखा रहा हूं जिनको इस प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है। तो उससे होगा क्या, मेरा पैसा कम लगेगा और मेरा कन्वर्जन रेट भी ज्यादा होगा, बिकॉज आई एम नॉट पेइंग द मनी फॉर unnecessary people who do not want my product. So this is one of the very good advantage. Next thing is that no use money is required. Really, it is almost free. मैं आपको एक YouTube का आज डेमो दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं डेमो करके बताऊंगा एग्जैक्टली कि कैसे YouTube का एड डाला जाता है। तो देयर यू विल सी दैट हाउ इजी इट इज एंड हाउ चीप इट इज, इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। एंड लास्ट दैट अल्टीमेटली गुड थिंग इज दैट कि आप एडवर्टीजमेंट का पैसा तब देते हो जब आपका एडवर्टीजमेंट क्लिक होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बात मुझे बहुत पहले नहीं पता थी। मुझे लगता था कि YouTube के अंदर में मैं जितने भी ऐड देखता हूँ शायद वो लोग पे करते होंगे। ऐसा नहीं है। जब तक कोई आदमी 30 सेकंड का ऐड नहीं देखता है तब तक आप उसका पैसा नहीं देते हो। और यदि वो एडवर्टीजमेंट देखते देखते स्किप कर देता है YouTube का ऐड को, तो भी आप पैसा नहीं देते हो। यानी आप पैसा जब देते हो जब सामने वाले ने पूरा आपका ऐड देखा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं आगे और समझाऊंगा कि हाउ कॉस्ट इफेक्टिव इट इज। बट सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज की दुनिया में कंपटीशन से नहीं जीता जा सकता। आज की दुनिया में हम जीत सकते हैं टीम वर्क के साथ में। वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू वर्क एज ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट एज ए कंपटीशन। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, आपने सुनी होगी पहला पार्ट, लेकिन दूसरा और तीसरा पार्ट मुझे लगता है शायद आपने नहीं सुना होगा। इसको ध्यान से देखिए, छोटी सी कहानी। Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race. Emerging as the undisputed champ, the rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off
and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly a... So I hope that you got my message out of it, right? You might have a great core competency, but you have to collaborate with somebody. You have to join your hands with somebody. You have to make some kind of a partnership to win together. तो अभी वो जमाना गया कि हम कंपटीशन में करते थे, अब हम कॉम्पीट करते एक दूसरे को. ओके, हम बात करने वाले हैं अगले स्लाइड में 3 बेसिक्स की. बड़ी सिंपल सी है, मैंने बहुत टिपिकल नहीं बनाई है. हम यदि इसको बॉइल डाउन करें तो इट इज रियली सो सिंपल, बट पीपल मेड इट वेरी 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 टिपिकल. सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द 3 रियल बेसिक्स of doing the social media marketing. It's very simple. The first thing is that first of all you have to really discover that who is your customer and where does he reside. वो रहता कहाँ पर है. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका कस्टमर है जो कि यंग एज का है, बहुत ही यंग है और स्टूडेंट है या कॉलेज लाइफ का है, तो वो ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा? लिंक्डइन में नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम में मिलेगा या पिंटरेस्ट में मिलेगा. यदि आपका कस्टमर कोई बहुत बड़ी फर्म के अंदर में काम करने वाला है या स्मॉल बिजनेस या बड़े बिजनेस वाला है, तो वो आपको मिलेगा लिंक्डइन के अंदर में. और यदि आपका बिजनेस जो कस्टमर है वो जनरल है, जो कि छोटी छोटी चीजें या जनरल चीजें, तो वो आपको फेसबुक पे भी मिल सकता है. यानी पहले आपको समझना है कि हर सोशल मीडिया पे हर आदमी नहीं मिलता. आपको टारगेट करने के लिए परफेक्ट सोशल मीडिया ढूंढना पड़ेगा और आपको अपना अवतार बनाना पड़ेगा. अवतार समझते होंगे शायद आप, कि यानी मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर एग्जैक्टली आइडियल कस्टमर को क्या क्या चीजें पसंद होंगी, क्या क्या चीजें वो करता होगा, क्या एज ग्रुप का होगा, कहाँ रहता होगा. तो जब मुझे एग्जैक्टली मेरा कस्टमर पता होगा तो मैं उसको इंटरेक्ट कर सकता हूँ, उसके साथ में मार्केटिंग कर सकता हूँ. तो अल्टीमेटली आई हैव टू डिस्कवर हु इज माय आइडियल परफेक्ट कस्टमर अवतार. नंबर 1. नंबर 2, मुझे अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. देखिए, यदि मैं अनाधुन होकर के और ऐसी आंख मीच करके कुछ भी करने लग जाऊंगा तो फिर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो आई हैव टू प्लान स्ट्रेटजी वेरी वेरी मच केयरफुली. मेरे गोल्स क्या है? मुझे अगले 1 साल के अंदर में 10 प्रोडक्ट बेचने हैं या 500 प्रोडक्ट बेचने हैं. मुझे 10,000 रुपए का बिजनेस करना है या 5,000 रुपए का बिजनेस करना है. कितने टाइम में कितना बिजनेस करना है, कितनी सिटी में करना है. मेरा कस्टमर बिजनेसमैन है या मेरा कस्टमर कंज्यूमर है. मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है B2B. B2B का मतलब मेरा बिजनेस टू बिजनेसमैन है या टू कंज्यूमर है. तो दैट आई हैव टू सी एंड अकॉर्डिंगली मुझे अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा. कंटेंट इन द सेंस कंटेंट इन द सेंस कि जैसे मेरी फेसबुक की प्रोफाइल, मेरा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, कलर कोड, हैशटैग्स, कंटेंट ये अकॉर्डिंगली बनेगा. ग्राफिक्स भी मैं उसी तरीके के बनाऊंगा जिस तरीके का मेरा कस्टमर है. यदि मेरा कस्टमर यंग एज है तो मैं उसे बहुत सीरियस और बड़ा सेंसिटिव नहीं बनाऊंगा. थोड़ा फ्रॉलिक, थोड़ा मजेदार, थोड़ा फन और थोड़ा एनिमेटेड टाइप भी बना सकता हूँ. तो अकॉर्डिंगली मैं कंटेंट बनाऊंगा. और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें दे क्या रहे हैं. कस्टमर आपसे हमेशा एक ही चीज पूछता है और वो पूछता है WIIFM, और आप उसका यदि जवाब नहीं देते हो तो फिर कस्टमर उठ के चला जाता है. आप लोगों को बोलते हो सब्सक्राइब मी, कस्टमर बोलता है WIIFM. आप कहते हो ओके, आप उसे जवाब नहीं देते हो तो वो चला जाता है. आप बोलते हो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर बन जाओ, मुझे बहुत सारे बिलियन फॉलोअर्स चाहिए. वो कहता है WIIFM. आप उसका जवाब नहीं देते हो, वो उठ के चला जाता है. आप इस तरीके से कस्टमर को बुला सकते हो एक बार, लेकिन यदि उसका जवाब नहीं देते हो WIIFM का, तो वो फिर उठ के चला जाएगा. लेकिन आप बोल रहे होगे ये क्या WIIFM कर रहे हैं. WIIFM का मतलब होता है कस्टमर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इन इट फॉर मी. मेरे लिए इसमें क्या है. मैं आपके शोरूम में, आपके मॉल में, आपकी दुकान में, आपकी वेबसाइट में आता हूं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा. क्या कोई चीज मेरे लायक काम की है, क्या कोई मेरे लायक चीज है. और आप बोलते हो यस देयर इज समथिंग फॉर यू. डेफिनेटली ही विल कम एंड ही विल फॉलो यू, सब्सक्राइब यू, और वो आपका एक रेगुलर और लॉयल कस्टमर
बनेगा। तो आपको कुल मिलाकर के उनको एजुकेशन देनी है, यानी जो जो चीज आपको आती है, छोटी सी स्लाइड, छोटा सा ई बुक दे सकते हो आप, छोटा सा मैसेज दे सकते हो, कुछ टिप्स दे सकते हो, जिससे आपको लोगों को लगेगा कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वो एजुकेशन। एंटरटेन कर सकते हो, कुछ स्पेशल, कुछ ह्यूमर के थ्रू या कुछ इस तरीके के थ्रू आप उन्हें एंटरटेन, और इन दोनों चीजों के कारण में वो इंगेज रहेगा। तो जितना ज्यादा आप कस्टमर को इंगेज रखेंगे, उतना ज्यादा वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, और फिर आप उसे कोई चीज सेल कर सकते हैं। सेलिंग आप यदि फर्स्ट डे या पहले अटेम्प्ट में करते हैं तो वो काम नहीं करती। आपको पहले रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए, आपको उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, फिर आप धीरे धीरे उन्हें प्रोडक्ट बता सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई आदमी आपको जानेगा नहीं, ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक वो आपसे कुछ खरीदने वाला नहीं है। तो दीज आर 3 सिंपल बेसिक्स। आपको कस्टमर ढूंढना है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, और आपको उनके साथ में इंगेज होना है। एज सिंपल एज दैट। सो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि हम एडवर्टीजमेंट कैसे डाल सकते हैं। और मैं आपको आज डेमो बताने वाला हूँ यूट्यूब का। ठीक है, यूट्यूब का क्यों? क्योंकि आपको शायद पता होगा कि यूट्यूब इज ओन्ड बाय गूगल, और दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है दैट इज गूगल, आप सबको पता है। लेकिन सबसे सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन दुनिया का जो है वो है YouTube। इस लोगों को सभी लोग जानते हैं ना। तो हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये आपका YouTube का एड काम कर सकता है। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं डायरेक्टली, तो प्लीज बेयर विथ मी, आई जस्ट टेक यू टू माय रियल वेबसाइट। ठीक है ना? ओके, आई होप कि आपको दिख रही होगी मेरी वेबसाइट। यहाँ पर ये मेरा YouTube का पेज है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस दिख रहे होंगे आपको। अब मैं आपको यहां से लेकर के चलता हूं और प्रैक्टिकली बताता हूं कि हम ऐड कैसे डालते हैं गूगल ऐड के थ्रू और किस तरीके से काम करता है। तो ये एक मेरा छोटा सा एडवर्टीजमेंट है जो मैंने लेस देन 1 मिनट का बनाया है, जो कि एडवाइजेबल होता है कि आप 1 मिनट से कम का ही ऐड बनाएं, क्योंकि जब आप YouTube के अंदर में ऐड डालते हैं तो बहुत बड़ा ऐड नहीं काम करता है। तो वहां पर जाकर के मैंने उस ऐड के अंदर में ऑप्शंस में जाकर के क्लिक किया है। यहाँ पे जब आप 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो वहां पर आता है प्रमोट। वंस यू क्लिक दिस वन, तो डायरेक्टली इट विल टेक यू टू द अनदर पेज दैट इज कॉल्ड गूगल एड्स। नाउ गूगल एड्स पे डायरेक्टली मेरा चला गया है, आप देख रहे होंगे, और इसने सीधे पूछा है कि यू विल प्रमोट द वीडियो यूजिंग गूगल एड्स। बट आपके केस में वो शायद नहीं होगा, क्योंकि यदि आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और आपको अपनी बैंक डिटेल्स या जो क्रेडिट कार्ड है मम्मी पापा से बात करके वो उसमें डालनी पड़ेगी। तो जब आप उसको लिंक कर देते हो तो फिर गूगल आपके लिए एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर देता है। अब ये है कितना सरल और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो जस्ट आई एम क्लिकिंग डायरेक्टली, सो वंस आई डू द गेट स्टार्टेड, ये अभी डायरेक्टली चल रहा है ऑनलाइन वेबसाइट में। तो आप देखिए, जैसे आप इसको करेंगे तो ये आपको उस पेज पे ले आएगा कि आपका ऐड कैसे जाना चाहिए और आप उसे किस तरीके से डालना चाहते हैं। सो दिस इज द ऐड। ओके, सो व्हाट आई विल डू कि लेट मी हाइड दिस। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि लेट्स क्रिएट योर वीडियो ऐड। तो अब मैं एक वीडियो का एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो 2 ऑप्शन पूछ रहा है ऑटोमेटिकली प्लेड बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द यूट्यूब। जैसे आप देखते हो कि वीडियो कोई भी चल रहा होता है तो बीच में आ जाता है, जिसमें आप स्किप भी कर सकते हो, कभी कभी आपको देखना भी पड़ता है। तो यदि ऐसा करना है, लेकिन दिस वन इज गुड व्हेन यू आर ड्राइविंग ट्रैफिक टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कोई भी ऐड डाल रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, सर्विसेज का यूट्यूब के थ्रू, तो आपके पास में लैंडिंग पेज तैयार होना चाहिए। यानी कोई आदमी को अच्छा लगता है आपका ऐड तो वो क्लिक करेगा, तो वो जाएगा कहाँ पर? तो यहाँ पर मेरे पास में एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं अपना एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम चलाता हूँ, डिस्कवर द राइटर विद इन यू, जिसके अंदर में मैं लोगों को कैसे किताब लिखना है वो सिखाता हूँ। तो वो मेरा ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, वो कंटिन्यूसली वहां पर चलता रहता है। तो उसका मैं लिंक लेकर के यहाँ पर डाल रहा हूँ और मैं इसको चूज कर रहा हूँ ऑटोमेटिक वाले पेज में। तो जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक किया तो आपने देखा होगा यहाँ पे वो पूछ रहा है आफ्टर व्यूअर्स क्लिक योर एड वेयर डू यू वांट टू सेंड देम, आप उन्हें कहाँ भेजना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं फट से अपना वेबसाइट का एड्रेस लिख दूंगा कि जी मैं चाहता हूं कि वो लोग जैसे ही क्लिक करें तो इस वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ही इज आस्किंग कि ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल पार्टनर वेबसाइट और ओनली ऑन यूट्यूब। तो बिकॉज मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे, तो आई वुड प्रेफर फॉर द YouTube एंड गूगल वीडियोस बोथ। ठीक है, तो हाउ इज गोइंग टू लुक लाइक, यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इस तरीके का ऐड दिखेगा।
और आई एम विनोद तिवारी करके आएगा, एड लिखा आएगा और यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली लैंडिंग वेबसाइट पे चला जाएगा। लेट मी पुट नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि ही इज आस्किंग लोकेशन, तो यहाँ पर ये लोकेशन पूछ रहा है कौन कौन सी कंट्री में। जैसे मान लीजिए मैंने इंडिया तो डाला है, मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स भी डाल देता हूँ कि मैं अमेरिका में भी दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने ये 2 जगह की ऐड डाली। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड के अंदर में मेरा परफॉर्मेंस आ रहा है, एस्टिमेटेड वीकली परफॉर्मेंस, यानी मेरा जो एडवर्टीजमेंट है वो इतने लोगों को अप्रोक्सीमेटली दिखाया जाएगा एक हफ्ते में, ठीक है। एंड दिस इज अराउंड 15,000 टू 32,000 इंप्रेशंस वुड बी देयर। इंप्रेशन का क्या मतलब होता है? इंप्रेशन का मतलब होता है कि मेरा वीडियो उनके सामने से गुजरेगा, उनके सामने से निकलेगा, मतलब दे कुड एबल टू सी दैट, उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद में आप नीचे देखोगे तो 15,000 32,000 के नीचे लिखा हुआ है व्यूज, यानी व्यूज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4,000 से 8,000 के अराउंड आपको व्यूज मिल सकते हैं। और ये व्यू देखिए, जो चीज मैंने आपको शुरू में बोली थी ये लिखी हुई है, व्यू इज काउंटेड व्हेन समवन शोज इंटरेस्ट एंड वॉचेस 30 सेकंड ऑफ योर वीडियो एड। यदि कोई मेरा 53 सेकंड का टोटल एडवर्टीजमेंट है, उस 53 सेकंड में से यदि 30 सेकंड से ज्यादा का ऐड दिखेगा तो ही वो व्यू माना जाएगा। यदि किसी ने 15 सेकंड या 20 सेकंड का ऐड देखा तो मुझे पैसा नहीं देना और वो व्यू भी नहीं माना जाएगा। तो दिस इज समथिंग रियली गुड। और एक व्यू का मुझे तकरीबन कॉस्ट कितने पड़ेगी, इसको बोलते हैं सीपीवी, यानी एक आदमी ने व्यू किया तो मेरे अकाउंट से मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा एक व्यू का, 25 पैसे से लेकर के 74 पैसा, यानी 1 रुपया भी नहीं लगेगा यदि मेरा एक आदमी वो ऐड देखता है। कहां पर? पूरे भारत में या पूरे अमेरिका में। साउंड्स गुड। यानी यदि मैं एक एडवर्टीजमेंट टीवी का, न्यूज़पेपर का या रेडियो का सोचता हूं तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन यहां पर एक एडवर्टीजमेंट में एक कस्टमर को 1 रुपए से भी कम के अंदर में मैं आकर्षित कर रहा हूं। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि जिसने व्यू किया है वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा, बट यस उस आदमी ने आपका पूरा एडवर्टीजमेंट देखा है। व्हाट आई मीन टू से दैट कि आउट ऑफ दिस टोटल व्यूज ओनली आई वुड बी पेइंग 25 पैसा टू 74 पैसा फॉर 1 सिंगल व्यू, सो दैट्स रियली वेरी चीप। एंड second thing over here is that I can add languages as well. What I want is that when Indian people are going to see that, I want that Hindi also should be added. So when I add Hindi, the graphics, the impressions, everything is going to change. See, before it was different. Now it's 14 to 32,000, 4.3 to 9,000, and the cost would like this. Okay, so here what you did, you have set it the demographics and you have set the language as well. Now if you want that your product should go to particular regional language like Tamil, Telugu, Kannada or whatever, so that also you can choose. So those options are available over here, right? I'm not going to choose those, but yes, it is available. Kannada, Malay, Malayalam, Marathi. Okay, now let me go next. What next it is there? Okay, now very important is that here I am going to choose the gender and the age. Okay, now suppose if my product is only meant for a female, I would just remove this unknown and male. Okay, so it is only for the female. After I select the gender, but in this case I don't want to select the gender because I want everybody to be in. Now here a very important thing is that you can select the age as well. Suppose कीजिए कि मेरा प्रोडक्ट 40 years से above है ही नहीं है, तो what I would do, I will deselect all those. ठीक है ना? मैं ये deselect कर देता हूँ. I would select only 25 to 44. I want only this range of people to be in, right? Now see, if you will see that weekly estimated performance has been changed. Okay, now it is 16 to 35,000 and it is 24 paisa to 71 paisa each. And one more good thing is that those people who are parent or not a parent, ये भी मैं चूज कर सकता हूँ। यानी कोई प्रोडक्ट ऐसा है जहां पर पेरेंट्स को डिसीजन लेना है तो फिर मैं पेरेंट्स के लिए डाल दूंगा, और यदि बच्चे भी देख सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो आई विल पुट सेम एज वेल। ओके, नाउ आफ्टर दिस ऑल आई होप कि दिस इज ऑल क्लियर। वी विल गो टू द नेक्स्ट। Now, here one important thing is that now you can go and target those people who have interest in particular thing.
ठीक है ना, जैसा आपने शुरू में बात करी थी, यदि मैं जहां जाता हूं कि मेरा प्रोडक्ट उन लोगों को मिले जैसे लाइफस्टाइल हॉबीज के अंदर में जो आर्ट एंड थिएटर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो फैमिली फोकस्ड हैं, जो फैशनिस्ट हैं, जैसे पहले हमने मेकअप के प्रोडक्ट की बात करी थी, मेकअप का प्रोडक्ट है तो वो फैशनिस्ट को डाल सकते हैं, ठीक है ना, नाइट लाइफ एंथुसियास्टिक, आउटडोर, पेट लवर्स. सो हियर आर दिस बेसिकली you will find so many options where you can go and talk to your niche segment and it would be better. But here what I would say that if you initially you keep the interest as broad as possible where it will be shown to each and everyone, that would be really good. So उस केस में क्या होता है कि आपका cost per click बहुत कम आता है, you are paying less. See here you are paying only 24 पैसा और 71 पैसा per click, so that is the best thing. So once you do this all, again you will put next and the next screen shows and it asks you कि आप कितना बजट बनाना चाहते हो एक दिन का. This is for 24 hours. They are asking me how much do you want to spend? Pay only when someone watches 30 seconds of your video or duration of this one, interact with the ad. Now ये मैं INR में है, रुपीज में कितना भी कर सकता हूँ, 500 रुपए भी कर सकता हूँ, 200 रुपए भी कर सकता हूँ, 1000 रुपए भी कर सकता हूँ, कितना भी रुपए कर सकता हूँ. So when I do like this, I can set my budget. इसमें अच्छी बात क्या है कि जैसे आपका ये गोल पहुंचेगा 250 रुपया उस दिन का, ये आपका ऑटोमेटिकली कैंपेन स्टॉप हो जाएगा और अगले दिन दोबारा से शुरू होगा क्योंकि आपका उस दिन का बजट पूरा हो गया. पर हाँ, 250 रुपए जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये एड आपका दिखाना चालू रहेगा. तो सपोज कीजिए मैंने 250 रुपए इसमें बजट बना दिया, आई विल पुट नेक्स्ट एंड देन इट विल आस्क मी कि रिव्यू योर कैंपेन. तो मैं इसको पूरा रिव्यू करूंगा. यहाँ पर मैं नेटवर्क, हाउ योर एड शोज, लोकेशन, कुछ चेंज करना चाहूँ यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ एंड फाइनली आई कैन पुट द नेक्स्ट. So once I put next, it's going to go live, which I do not want to do, but okay, I'll show you that how it does look like. Once I show it, then it will ask active, your campaign is active, immediately active ho gaya. But sometimes if it takes time to get it approved, but what I will do, I will not make it active, I will pause the campaign. तो मैंने इसे pause कर दिया. And it is so simple, so easy that any time, any given point of time, you can close it, you can stop it, or you can pause it. So it is that easier, you know, that much easy. So this is all about that one. I hope कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें से, बट मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि अगेन टाइम बहुत कम था और ये बिगिनर स्टेज पे कर रहा था. यदि हम इसको और डीपली करना चाहें तो कर सकते हैं. इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, आपको ये समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली हाउ डज द एल्गोरिथम वर्क्स ऑफ यूट्यूब, व्हाट कीवर्ड्स और फ्रेजेस यू कैन पुट एंड हाउ यू कैन शो योर एडवर्टाइजमेंट टू द कॉम्पिटिशन साइट्स एज वेल. आप अपने कॉम्पिटिटिव वेबसाइट के अंदर में कॉम्पिटिटिव साइट्स में भी दिखा सकते हैं वीडियो को. इट्स वेरी मच पॉसिबल. So this is all about this one. Now I would open my forum for the question answers because whatever questions do you have, you can please ask me. And this is my social media handle. You can find me all these social media handles. I am Vinod Tiwari, LinkedIn, Facebook, everywhere you will get it. And last but not the least, I would request that आप जितने भी लोग हो, जहाँ से जुड़े हो, मुझे नहीं पता आप कौन कहाँ से जुड़े हो, but मैं आपका real feedback जानना चाहता हूँ. I want to know exactly what did you like it, what did you not like it, what you want more or whatever. So how you can give me the feedback? Go to the Google website and you can search hashtag iamvinodtiwari and then you will find like this mentor of change and you know, here you can go and put your review. So you can go for 5-star reviews and you can write your message. So I would request you to please do connect, and if you will put your email, I can give you my first chapter of my ebook free as well. So this is all a small gift to all of you guys, and it was lovely talking to each one of you. Now I would request Madhuri to please take the next session for any question answers, please. Thank you, sir. So there's two relevant question which has come up on the live chat. The first is that one, I guess it is from the medical background. So someone has asked if their customer category related to the patients, I think medical services. So which will be good social platform? Okay, very good. So like if as a medical professional you're asking that you for your target audience are basically who do have who are practicing into the doctor field, medical field, or they have some medical store or kind of surgery equipment or something, तो उसके लिए I would prefer the most best site across all this is the LinkedIn.
If you will go and type it or search for the medical, you will find so many medical companies and their employees and their senior management also over there. So I would prefer not to go for the Facebook or the Twitter or this Pinterest or anybody, but LinkedIn would be the best for the medical professionals. Thank you. So next, thank you. So next question is that how can we ensure that customers do not click on this stop seeing this ad? Come again, sorry. So one student, one audience has asked, how can we ensure that customer do not click on the stop seeing the ad? Okay, so why you want exactly to not to stop? See, thing is that I want that my ad to be shown to each one of them. But once it is shown over there and somebody is not skipping, okay, somebody is not skipping and he is watching the complete ad of 1 minute or 53 seconds what I have made. So I am going to pay for that ad, but I want that ad to be shown to maximum number of people. And once it is skipped or it is stopped by the customer, by the client or customer, definitely Google or YouTube will give me the analysis. They are giving me the complete analytics, deep analytics, who have seen the ad, how many people have not seen the ad, how many people skipped it, from which demographic, from which age group, from which gender. So everything is being given by this website in a detailed way. So once you get the campaign is stopped after a couple of days, you will get complete detail. How many people skipped it and how many people have not skipped and shown and seen your complete advertisement. Thank you. So yeah, thank you, sir. Another question is that if we keep budget for ads zero, will show for some second if it's about 25 seconds in YouTube. Very smart. No, but it doesn't work like that. You have to make some budget. Until and unless there is some budget is not there, the advertisement is not going to start, because advertisement start करने के लिए कुछ budget तो चाहिए, चाहे वो 200-250 रुपए भी रख सकते हो, 100 रुपए भी रख सकते हो मेरे ख्याल से. But again, thing is that the more money you give, the more broader the audience would be and the more reach it would be. But I understand आपका भी budget नहीं होगा, तो you can keep some budget. But you cannot be so smart कि मैं free में रखूं और सब लोगों को 20-20 सेकंड का ad दिखा दूं. ऐसा नहीं होता. आपको थोड़ा सा budget रखना पड़ेगा. And definitely the algorithms are like that. It is completely automized. पूरा artificial intelligence पे चलता है. तो उसमें कोई cheating या ऐसा सवाल नहीं होता कि जो उन्होंने advertisement नहीं दिखाया और मुझसे पैसा ले लिया. It doesn't work like that. Even for the expert session, if suppose sometime I will take, so there I will tell you how you can retarget those customers as well, those people who have seen your ad or they have come or they have checked your website or they have checked your advertisement one time. You can go and ask them again. Thank you. Thank you, sir. Sir, another question is that what is how you can make a YouTube video for YouTube ads? Very good. So like whatever product you have, कोई भी आपका जो product and services you have, you can make the small advertisement, maybe 30 second, 40 second, 50 second or 1 minute, maximum 1 minute advertisement. तो आपको एक छोटा सा ad बनाना है. How you can make the ad? You have to see that how your competitions are making advertisement. सिंपल एड आज की डेट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और कोई सेलिब्रिटीज की भी जरूरत नहीं होती. इफ यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट, दैट वुड बी बेस्ट. लाइक रामदेव बाबा इज डूइंग द सेम. सो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा सा एक ऐड बनाइए, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताइए, सामने वाले को बताइए इसमें क्या मिलने वाला है, और एक सिंपल सा ऐड बना करके उसको आप रन कर सकते हो. बट अगेन, ऐड कैसे बनाना है और क्या क्या चीज उसमें होनी चाहिए, कितने सेकंड में आपको क्या बोलना है, कहां पर क्या बोलना है, अगेन इट्स अ डिटेल्ड सब्जेक्ट. But as a general, I would say that you have to make a 1 minute ad and you have to showcase exactly what product or what services you're going to offer within that time. So that person should get click and उसको अपील करना चाहिए कि yes, this is something I'm looking for. तो definitely वो आपके ad को click करेगा और आपकी website पे land करेगा. Thank you. I think someone has asked for the where the school students can get their advertise their product on the market their digital products. Is there any platform, social media platform, for the school students?
So what I would, suggest that school would not be having any kind of a general platform. What you can do is that you can talk to your mentor or talk to your teacher or talk to your parents, and then you can design that any particular platform, any of the platform like Facebook or YouTube or whatever. तो आप उसको शुरुआत करें एक से. Don't go and mix up and match for all the things. Start it with small. Start it with Instagram or YouTube or whatever, and with your parent consent and with your mentor's consent, you can start doing it. But there is no any kind of a generalized platform which has been given by the school. You have to design at your own, and it's going to take time. You have to be patient. It takes little time, but again, start with a goal that I want this goal, and do it very professional, so that people really, once they come, they stick to you for a long time. Thank you. Thank you, sir. Others are related, not as relevant, which I can take up right now. So, well, I'll just take the last question. So I tried for the Google Ads. I got 2,000 rupees code as gift, but still it was asking for the budget. Okay. So what happened that when you are a good user of the Google or YouTube, they do generally give you some kind of coupons to make you promote, so that you come for the advertisement and you pay actually to them for the advertisement. So that coupon can be used, whatever amount you're saying, 2,000 rupees, but then there should be some budget allocated from your side. And again, when I told that time as well, that you have to link your bank account or credit card account with that one, because suppose I made a 350 rupees per day budget or 5,000 rupees budget, और मेरा ऐड हो गया और बाद में वो गूगल ने बोला कि आपके 4 दिन का ऐड आया, 2,000 रुपीज का बिल है, तो how they are going to get that amount. So for that they want to get linked everything, and then only the approval would be coming to go ahead. यदि ऐसा नहीं है तो गूगल मेरे घर पे तो फोन करेगा नहीं और वो आएगा नहीं वसूलने के लिए. तो once the budget would be there and the amount is allocated and the bank account is linked with that particular account, then only ad is going to run, and then things will change. Thank you. So we'll wind up the sessions because we will know. There's the one last question that has come up right now. In some YouTube ads, there's no skip ad option. So if we put ad in YouTube between the ads, do our rupees get cut or not? Our budget, it implies. So what generally do happen that when the advertisement is less than 30 seconds, यानी मेरा एडवर्टीजमेंट 20 सेकंड का ही बनाया, सिर्फ आई वांट टू जस्ट मेक अ कॉर्पोरेट एड जस्ट टू शो समथिंग एंड ऑल, आई जस्ट डोंट वांट टू सेल somebody and I don't want somebody to direct it to particular website, then definitely that ad cannot be skipped. YouTube will decide automatically that this ad is not skippable. And one more thing, when you go in deep and you design the advertisement in a detailed way, which is not required at a beginner stage, so that's why I did not cover that thing. So there you do have an option. You can go for option either skippable or non-skippable as well. So even if it is a 1 minute ad and you put it unskippable, so people cannot skip that ad. People have to see it, and when they will see it, money will get deducted. But yes, if there is a short ad and if it is not skippable, every time 1 rupee, 2 rupee or whatever is there as per the demographics, it will definitely get deducted. But again, it's a complete algorithm. You have to understand, you have to take time, you have to experiment, you have to check again and again. It's a trial and error method. So it takes time, maybe 3 to 6 months, you will understand that how much money is going to deduct, which demographics are good for you. And you can start actually from your mohalla, from your city, small place, छोटा सा जगह से शुरू करिए, and धीरे धीरे then grow bigger. So once you start, you will get confidence that yes, this is the tactics, and then you can go ahead. And then I did not cover here over the keywords and all. It plays a very, 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 very important role. So which is actually for a not beginner stage, but yes, we can cover later stage. Thank you. Thank you so much for joining the sessions, and this was very insightful discussion, and hope the audience has also benefited, and especially whatever the question we have taken relevant to the sessions, so it will help them in leveraging their digital ventures in the Atal Tinkerpreneur. The questions related to the Atal Marathon, sorry to raise this issue, but tomorrow, please wait for tomorrow. There will be an official announcement for the Atal Marathon. So now we'll wind up the session for today's.
Thank you everyone who has joined for today's Atal Tinkerpreneur Bootcamp session. We have got a very insightful discussion from our very respected RMC from Gujarat, Vinod Tiwari sir, and he had explained in every details about what are the whatever the interfaces goes in your making your online business and taking the help of social media platform to take it to the further level. So thank you, Vinod sir, for giving your time and patience for this session and joining us for this very lovely afternoon. And I wish everyone a very happy Eid and stay blessed and stay happy. Thank you so much for joining here. Thank you very much, Ms. Madhuri, Mr. Ronak, and all the AM team. Always, you guys, I salute that the way you are doing. It's amazing. Thank you very much. And have a pleasant evening, all the students, all the parents, all the teachers, all the mentors. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone.